કાળની કારમી થપાટ વાગી છે અને સ્વજનો પીડા અને કલ્પાંત કરી રહ્યા છે। એક બાપ છે જે પોતાના દીકરા માટે રડી રહ્યો છે, એક બાપ છે જે પોતાની દીકરી માટે રડી રહ્યો છે, એક પતિ પત્ની માટે તો કોઈ પત્ની પતિ માટે રડી રહ્યા છે અને આ રડવાનું કારણ છે પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના। જે દુર્ઘટના 12મી તારીખે અમદાવાદની અંદર બપોરે 1:30 થી 2 વાગ્યાની આસપાસ સર્જાઈ છે। એ દુર્ઘટનાએ ઘણા બધા લોકોની આશા, અપેક્ષાઓ, એના સપનાઓ ઘણું જ બધું છીનવી લીધું છે અને એ છીનવી લીધું છે એમાંથી ઘણી બધી પીડાઓ, ઘણી બધી કરુણા, કલ્પાંત એ સામે દ્રશ્યો, તસવીરો લઈને આવી છે। વાત કરી હતી અમે તમારા સુધી પ્રતિક જોશી અને એમનું પરિવાર જે જઈ રહ્યું હતું લંડન। એ ભાઈ પોતે સેટલ થયેલા છે લંડનની અંદર અને પત્ની અને બાળકોને લેવા માટે આવ્યા હતા। હજુ તો 2 દિવસ પહેલાં એ ઇન્ડિયા આવ્યા અને એ પોતે ડૉક્ટર છે, રેડિયોલોજિસ્ટ છે। શરૂઆતમાં અમારી પાસે માહિતી સોફ્ટવેર એન્જિનિયરની આવી હતી, પણ હવે એમના પિતાનું નિવેદન આવ્યું છે। એમણે કહ્યું કે લંડનમાં સેટલ છે ઘણા વર્ષોથી અને પોતે રેડિયોલોજિસ્ટ ડૉક્ટર છે, ડૉક્ટર પ્રતિક જોશી। એમના વાઇફ ડૉક્ટર કોમી જોશીને લેવા માટે, એમના સંતાનોને લેવા માટે એ આવ્યા હતા અને ત્યાં એમને સેટલ થવાનું હતું। એમના વાઇફ, એમણે 2 દિવસ પહેલાં જ ઉદયપુરમાં એ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા। એમના વાઇફ પણ પોતે ડૉક્ટર છે। એમણે 2 દિવસ પહેલાં જ ઉદયપુરમાં રિઝાઇન કર્યું, રેઝિગ્નેશન આપ્યું અને બધી તૈયારીઓ કરી અને એ સસરા એ પુત્રવધૂને કહી રહ્યા છે કે બેચારી એકલી એ બધું જ બધા હાથે કર્યું। એમને ટ્વિન્સ છે અને એક દીકરો પણ છે, 3 સંતાનો એમને છે અને 3 સંતાનોને લઈ આટલા વર્ષોથી અહીંયા રહેતી હતી અને હવે જ્યારે એને ફાઇનલી પરિવાર સાથે રહેવાનો મોકો મળ્યો ત્યારે એ લંડન જઈ રહ્યા હતા અને અચાનક આ દુર્ઘટના સર્જાઈ। અમે મૂકવા પણ ગયા હતા, પણ દીકરાએ એવું કહ્યું કે પપ્પા ગરમી બહુ જ છે, વાતાવરણ સારું નથી અને તમારી ઉંમર પણ વધારે છે, તમે ઘરે જતા રહો। ઘરે આવ્યા, વિડીયો કોલમાં છેલ્લી વાત થઈ, વિડીયો જોયો અને પછી એવું કીધું કે અમે પહોંચીને તમને ફોન કરશું। હજુ તો ત્યાં એમને સેટલ થવાનું હતું, કેટલા બધા સપનાઓ હતા। એ 6-7 વર્ષથી પોતે લંડનમાં સેટ હતા પણ પરિવારથી દૂર, પત્નીથી, બાળકોથી, સંતાનોથી દૂર હતા અને પત્નીએ વિચાર્યું કે હાશ હવે પતિ સાથે રહેવાશે, હાશ હવે પરિવાર પૂરો સાથે રહેશે, પણ એ હાશકારો ક્યારે ધુમાડો કે ક્યારે રાખ બની જશે એની કલ્પના એણે નહીં કરી હોય। એ પ્રતિક જોશીની છેલ્લી તસવીર સામે આવી સંતાનો સાથેની કે જ્યારે એ ફ્લાઇટમાં બેઠા હતા, એ તસવીર એને સગા સંબંધીઓને મોકલી હતી કે ફાઇનલી અમે બેસી ગયા છીએ અને હવે આજથી, અહીંથી, આ ઘડીથી અમારા જીવનની નવી સફરની શરૂઆત થાય છે। પણ એ ખબર નહોતી સેલ્ફી મોકલતી વખતે કે આ જીવનનો અંત પણ બની શકે છે। એ 2 જ મિનિટ અને થોડી જ સેકન્ડોની ક્ષણ અને એ ક્ષણોની અંદર આખો જ પરિવાર વેરવિખેર થઈ ગયો। એ દીકરીના પિતા અને એ પ્રતિક જોશી, ડૉક્ટર પ્રતિક જોશીના પિતા અને કોમી વ્યાસ અને કોમી જોશી એમના પિતા છે, એ શું કહી રહ્યા છે એ સાંભળો। बस वो 4 साल से मैं जॉब में था, आता जाता रहता था बच्चों को मिलने और वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए उसको एक्सटेंशन और मिल गया तो उसने कहा कि अब मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था वो। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा हाँ आ जा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पहले आया था, 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आए तो वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिज़ाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिज़ाइन किया मेरी बहू ने, और अकेली ने सारा वहाँ रिज़ाइन किया न खाली किया न बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। बच्चों को संभालना समय से वहीं पे बच्चे कितने थे? बच्चे कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे। वो ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आज़ाद हो गए। अब जब यहाँ से गए 12 तारीख को लास्ट में, तो क्या मतलब मैं छोड़ने गया था इनको। हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है।
मैंने कहा सामान जमाएंगे, सब लोगों ने मेरी हेल्प करी। ये फैमिली भी आई साथ में मेरे, रात में भर यहाँ सब साथ में रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे। हम हॉस्पिटल में काम था, जाइडस में चले गए। ये इनको वहाँ क्या करता था आपका बेटा? हाँ, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो। डॉक्टर 4 साल से वहाँ जॉब में था, डरबी में, डरबी रॉयल हॉस्पिटल में। लास्ट कब आए थे इंडिया? इंडिया में 9 तारीख को आए थे। नहीं, अभी इससे पहले शायद मुझे याद नहीं है, पर 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले आया होगा। दिवाली पे तो आया, दिवाली पे आया था ना, दिवाली पे आया था। इस बार तो फाइनली ले जाने के लिए आया था। मुझे कहा पापा मैं 1 साल के पहले आऊँगा नहीं, अब आप आने की तैयारी करो। पहले तो उसे वहाँ से तो बोला था कि आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा मैं कि बेटा तू पहले सेटल्ड हो जा, मकान चेंज कर ले, मैं आ जाऊँगा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही, वो भी डॉक्टर है। तो मैंने क्लिनिक को उसे निकालने के लिए भी मैंने पूरे लगा दिए थे सबके। मैं चलो मेरी खुद की क्लिनिक है, मैं बंद करते हैं इसको, बेटे के पास रहेंगे। ये तस्वीरें जो कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, हाँ, वो कब देखी? वो प्लेन के अंदर किए हैं। प्लेन में वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, हमने यहाँ वहाँ से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर, आप चले जाओ घर पे। हम यहाँ आ गए। यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत। रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था वो। उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे, तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहाँ पढ़ेंगे। सर आपका नाम बताइए। अनिल व्यास नाम मेरा। वो कोमी, वो मेरी बेटी थी, डॉटर थी, जो इनकी बहू थी वो। तो हमने कल सब जा करके वहाँ DNA टेस्ट और ये सब दिए। पहले तो हम हॉस्पिटल में देखा कहीं ICU में या कहीं भर्ती हों या ये, तो कहीं मिले नहीं वो। उसके बाद हमने वहाँ DNA टेस्ट के लिए हुआ तो वो दिए। और हम बॉडी के वेट करने के लिए इतने सब वहाँ से बांसवाड़ा से आकर के बैठे हुए हैं और सब वेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये कि हमें जल्दी से जल्दी बॉडी को जो भी पार्ट्स हैं तो दे सकती है, हैंड ओवर करे, और नहीं दे सकती है, ख़त्म हो गया तो हम हमारे वापस चले जाएं, क्योंकि इतने सब ये परेशान हो रहे हैं। और ये एयर इंडिया की जो एयरलाइंस की जो कमी रही है ये कहीं न कहीं, तो इसकी एग्जैक्ट जांच करवा करके और इसके खिलाफ वो की, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना वापस नहीं हो। ये था। और उससे बात हुई मेरी 1:32 पे लास्ट वीडियो कॉल आया था मेरे पास में बच्चे का कि अब हमारे रनवे पे चालू हो रहा है तो मैं लास्ट बात कर लूँ ये करके। तो मैंने कहा अभी, और मम्मी को चेहरा बताओ। मैंने कहा वो ऑपरेशन थिएटर में है, डरबी जा करके बात कर लेना आराम से। अभी 8-10 घंटे में तुम पहुंच जाओगे, 10 घंटे में, उसके बाद तुम बात कर लेना। अभी जल्दी मत करो और आराम से तुम जाओ यहाँ। ये करके बात हुई और उसके 15 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आने लगे, वो कौन सी प्लेन में गए। तो हमने कहा कि वो तो इसमें थे। सर्च किया तो वही प्लेन थी। भागे भागे हम इधर उधर गए, सब जगह रास्ते ब्लॉक गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उनका प्रयास कर रहे हैं, उनका भी लिमिटेशन है, उनकी भी। आपको आपकी बेटी कब मिली थी लास्ट? कब आपको? हम साथ में ही यहाँ रहे। रात को 7 बजे मैं हॉस्पिटल में, मेरी मिसेज को ऑपरेशन था, तो 7 बजे उनसे मिल करके और वो गए। और ये 9 बजे ये एयरपोर्ट गए लेके। छोड़ने भी गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गया छोड़ने ये गए थे। मैं हॉस्पिटल में था, मिसेज का ऑपरेशन था इसलिए। और वीडियो कॉल पे बात होती रही। 1:32 तक बात हुई मेरी। और 1:36 पे ऐसे कोई क्रैश हुआ विमान, 2-3 मिनट बाद ही। फोटो आपको भी भेजा था कि सेल्फी फोटो जो? हाँ, वो सब भेजा था, मुझे भेजा।